وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ مولوی مبشر صاحب جو ہیں یہ آج کل لائیو پروگرام کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ان کا آج یہ لائیو پروگرام تھا، اس کا یہ ٹائٹل دیکھ لیں، معیار نبوت حصہ اول۔ اس میں انہوں نے 3 جو ہیں وہ اپنے نزدیک، ان مولوی صاحب کے نزدیک معیار نبوت پیش کیے، اور اصل میں ظاہر ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ گویا مرزا صاحب حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام ان معیار نبوت کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ خاکسار نے یہ جو پہلا جو ہے اس انبیاء کے استاد اور انبیاء اور شرک وغیرہ، اس بات کا ہم بارہا ان احباب کو چونکہ جواب دے چکے ہیں، اس لیے خاکسار نے یہ جو ان کا معیار نمبر 2 ہے اس کے اوپر ان کو کال کی۔ پیارے بھائیوں، اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو مولوی صاحب کا جو معیار نمبر 2 ہے نبوت کا وہ سناتے ہیں کہ مولوی صاحب نے وہاں پر کون سا معیار وہاں پر پیش کیا۔ میں معیار نبوت نمبر 2 ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اچھا جی، مرزا غلام قادیانی چونکہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ نبوت کا ایک معیار ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے، طبرانی کی یہ حدیث ہے، اور الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 120، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، اور ناشر مکتبہ ہے حقانیہ پشاور۔ فرمایا کہ مختلم نبی قط، یہ عربی کی عبارت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا، کبھی بھی کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا۔ اچھا، یہ حدیث آپ نے سماعت فرما دی، اور یہ معیار کس نے بنایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ کبھی بھی کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا۔ احتلام تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اگر تو آپ بالغ ہیں، نابالغ نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ احتلام کس کو کہتے ہیں، جس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد ایم میں یہ سیرت المہدی حصہ اول ہے، صفحہ 143 ہے، اور طبع جدید روایت نمبر 150 ہے۔ اچھا، یہ میں حوالہ آپ کو سنا دیا، عبارت بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرے پاس یہ ساری کتابیں یہاں موجود ہیں، کسی بھی قادیانی مرزئی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی حوالہ وہ کہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو ہم کتاب بھی دکھا سکتے ہیں، جتنے بھی حوالے میں دے رہا ہوں۔ تو یہ مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ، یعنی مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ انبیاء سوتے جاگتے پاکیزہ خیالوں کے سوا کچھ نہیں رکھتے اور ناپاک خیالوں کو دل میں آنے نہیں دیتے، اس واسطے ان کو خواب میں بھی احتلام نہیں ہوتا۔ یہ معیار آپ نے سن لیا، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار مقرر کیا کہ نبی کو احتلام نہیں ہوتا۔ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے بھی لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ نبیوں کو ناپاک خیال نہیں آتے، یہ احتلام ناپاک خیال کی وجہ سے آتے ہیں، تو لہذا ان کو ناپاک خیال آتا ہی نہیں، تو احتلام کہاں سے ہوگا؟ آئیے جی تصویر کا ایک رخ اور دیکھ لیتے ہیں۔ سیرت المہدی کے جلد نمبر 1 صفحہ 757 یعنی 57، اور روایت نمبر ہے 843۔ مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ بلا خوف و تردید ہم کہتے ہیں نہیں، وہ لکھتا ہے کہ حضور
ایک سفر میں تھے کہ آپ کو اس میں احتلام ہوا. حضور ایک سفر میں تھے، یعنی مرزا غلام قادیانی ایک سفر میں تھا، تو اس سفر کے دوران مرزا غلام قادیانی کو احتلام ہوا. اور یہ حوالہ ہمیں ملتا ہے سیرت المہدی جلد نمبر 1 ہے، حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 757 ہے اور روایت نمبر 843 ہے. اس ایک معیار سے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ مرزا غلام قادیانی کو جب احتلام ہو رہا ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرزا قادیانی نے خود کہا تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ ناپاک خیالات نہیں آتے، گندے خیال، گندے خواب نہیں آتے، جس کی وجہ سے یہ احتلام ہوتا ہے. تو انبیاء کو جب یہ آتے ہی نہیں ہے تو ان کو احتلام نہیں ہوتا. یہ مرزے نے خود لکھا تھا اور حدیث بھی ہم نے آپ کو سنا دی. تو اس ایک معیار سے ہمیں پتا چلا کہ مرزا غلام قادیانی نبی نہیں تھا. آئیے جی، یہ میں نے دوسرا معیار آپ کے گوش گزار کیا، اس کے اوپر کوئی دوست گفتگو کرنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے. اور اس کے بعد پیارے بھائی ہم چلتے ہیں اسی پروگرام کے تقریباً 45 منٹ پر ہماری جو ہے وہ کال شروع ہوتی ہے، اور ہماری اور مولوی صاحب کی گفتگو پیارے بھائیوں تقریباً 1.5 گھنٹہ لمبی ہے. اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس گفتگو کو مکمل طور پر سنیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو بڑے بڑے مولوی بنتے ہیں کس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے جیسے آج جو ہیں عاجز غلام وہ ان مولوی صاحب کا منہ بند کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ اس گفتگو میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مولوی صاحب نے بڑے لگتا یوں ہیں اپنے ساتھیوں وغیرہ کو، کبھی غلام رسول صاحب آ رہے ہیں، کبھی اور ساتھی آ رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو بلایا، لیکن پھر الحمدللہ جو ہیں وہ پھر بعض کی ان میں سے دوڑیں بھی لگیں. بہرحال چلتے ہیں پیارے بھائیوں اس لائیو گفتگو کی طرف. یہاں آپ لوگوں کی کالیں ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آیا اور کیا کہیں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے مولوی صاحب، ٹھیک ہیں؟ اللہ شکر. کون کہاں سے؟ جی میں ڈاکٹر یحییٰ بول رہا ہوں، لندن سے بول رہا ہوں مولوی صاحب. لندن سے یحییٰ صاحب؟ ڈاکٹر یحییٰ ہیں آپ؟ جی جی جی. ہاں ٹھیک ہو گیا، یعنی اچھا مربی صاحب. میں ڈاکٹر ہوں، میں مربی. اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو، وہ بات پھر ادھر چلی جائے گی. آپ نے کیا نا ٹاپک پہ رہنا، تو ٹاپک پہ رہتے ہیں. آپ نے ابھی مولوی صاحب آپ نے یہ جو آپ نے کہا معیار نمبر 2، میں صرف آپ سے ہلکی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں. جی آپ نے سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 757 کا حوالہ دیا. میری جی پہلی تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب حوالہ پڑھیں تو محترم تھوڑا سا جو وہاں پہ حوالہ پورا پڑھ دیا کریں. اسی صفحہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل اقسام 2 ہیں یعنی احتلام کی. ایک فطرتی احلام جو کسی بھی طبی تقاضے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسرے شیطانی الہام جو گندے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک اور منٹ اس ٹھہرے، کی وجہ ایک منٹ ٹھہرے ذرا. کون سے صفحے سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ سیم جو 757 صفحہ. 757 سے پڑھ رہے ہیں. جی اوپر سے کون سی لائن ہے؟ یہ روایت نمبر ہے جی 843 843. 557 صفحے سے؟ نہیں 757. 757. ایک منٹ میں حوالہ نکالوں تو. جی جی ضرور ضرور. جی 757. اور کون سی روایت پڑھ رہے ہیں آپ؟ 843. 43 شروع سے پڑھ رہے ہیں؟ میں اس کا بالکل جو آخری 2 لائنیں ہیں نا اس روایت کی، وہ اوپر جی والا تو آپ نے اوپر بیان کر دیا. یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے آخری 2 لائنوں میں، یعنی اصل اقسام 2 ہی ہیں. ایک فطرتی احتلام جو کسی بھی طبی تقاضے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسرے شیطانی احتلام جو گندے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کی توجہ اس لیے اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت جو ہیں، جو آپ کے مجدد ہیں احمد رضا بریلوی صاحب، انہوں نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 کے صفحہ 155 سے 159 تک ان کا ایک فتویٰ ہے
उसमें उन्होंने इस बात को बयान किया है, फरमाते हैं फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 15 15 जी, जिल्द 15 एक मिनट जी 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 जी, जिल्द 15 का सफा नंबर कौन सा है जी? 155 155 से लेकर 155 से लेकर 159 तक ये एक फतवा है, तकरीबन 4 सफ़े का। क्या लिखा है इसमें? अच्छा, उसमें यही एक साहब ने ये सवाल किया था आला हजरत से, तो उन्होंने उसके जवाब में ये लिखा है, इमाम नवी और हाफिज इस्कलानी के बारे में फरमाते हैं, हाँ इमाम नवी और हाफिज इस्कलानी ने शुरू है सही मुस्लिम व सही बुखारी में इसकी ये तावील नकल की है कि अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर फैजान ज़ियादत फुजला, यानी अगर कब्ज़ वगैरह हो, कोई बीमारी हो, बसबब इब्तलाए अदइया मना नहीं, यानी कि इहतलाम उनको हो सकता है। मेरे सामने फतावा रज़विया खुला हुआ है, किस सफे पे ये लिखा है? मोहतरम, ये जो मैंने जो है ना साइबर रिजवा की रज़िया की, आपको पता है वो सफ़े चेंज होते रहते हैं, लेकिन इसका जो मेरे पास जो है, इसमें है जिल्द 15 सफ़ा 155 से 159 159। अगर आपको हवाला चाहिए होगा तो मैं आपको ये दूंगा, ठीक है? सफा बिल्कुल दुरुस्त है, अंबिया के इख्तिलाम के ऊपर ये फतवा है। आप जो इबारत पढ़ रहे हैं किस सफे के ऊपर है? ये है जनाब सफ़ा नंबर 100, ये मेरा ख्याल 156 के ऊपर, 156 के ऊपर है, 156 के ऊपर। हाँ, अब पढ़े क्या यहाँ पे लिखे है? अच्छा, आप यहाँ से ये वो फरमा रहे ना, काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से मरवी हुआ, ठीक है? अब उसको पढ़ते जाएं कि याजूज व माजूज नुत्फा इस्लाम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से बने हैं, ठीक है? अव्वल काब ही का इसका, अब देखें आदम हजरत ने जाती तौर पर इससे इनकार किया है। डॉक्टर साहब एक मिनट, वो कहते हैं 100 गज रस्सा सिरे दे गंढ, आप कहना क्या चाहते हैं पहले तो ये बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ मौलवी साहिब, ये एक ऐसा मसला है जिसपे उलमाए किराम ने इख्तलाफ किया है। हजरत इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हाफिज इस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को जायज़ करार दिया है कि नबी को अगर ज़ियादत फुजला वगैरह से या बीमारी की वजह से इस्लाम हो सकता है, ठीक है? मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, अपनी तस्हीह कर लें मोहतरम। यानी ये कहना चाहते हैं, बस ना बात समझ आ। अच्छा, मतलब ये कि इस सफे में सफा 156 के ऊपर ये इख्तलाफ लिखा हुआ है जी, उसमें आपके आला हजरत साहब ने उनकी ये बात मानी है कि इन दोनों बुजुर्गों ने ये बात बयान की है कि इस्लाम हो सकता है। हाँ, शैतानी इस्लाम नहीं हो सकता, बीमारी की वजह से हो सकता है। अच्छा, ये जो बुजुर्ग थे, जिन बुजुर्गों ने ये कौल किया है, तो इनका कौल मोतबर है ना? हर वो कौल हमारे लिए मोतबर है। देखें, हर वो कौल हमारे लिए मोतबर है जो हमारी बात को सपोर्ट करता है। हाँ, वो ही ना, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ तो ये कहा था ना, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਬਰੇੜੀਆਂ, ਭਾਜੀ ਬਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ भाई, मेरे मौलवी साहब बरेलियां ने तो यही किया ना। हर मौलवी साहब की वो बात ले ली है तो बरेलियों के अपने फायदे में आपने क्या किया है? सुन भी तो लेना। तो मिर्जा साहब ने भी तो कहा ना कि भाई जो हदीसें मेरी तायद के अंदर है उनको तो मैं लूंगा, बकाया को मैं रद्दी की टोकरी में फेंकूंगा। जी मौलवी साहब, टॉपिक तब्दील नहीं होगा। आपने हर कॉलर को कह रहे हैं कि मौजूद तब्दील नहीं होगा, मेरी दफा टॉपिक क्यों तब्दील कर रहे हैं, मौजूद में तब्दील कर रहे हैं। नहीं, मौजूद तो नहीं मैं तब्दील कर रहा, मैं तो ये आपके ऊपर कह रहा हूँ। नहीं मौलवी साहब, ये सुनने वाले सुन रहे हैं कि मौलवी साहब अपना मौजूद तब्दील कर रहे हैं। आप ये बात बताएं कि क्या आप ये हाफिज इस्कलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम नबी के ऊपर ये फतवा लगाएंगे कि इन्होंने गलत किया है? गलत कहा है, क्या फतवा लगाएंगे? जो बस गुमराह थे ये, नौज़ बिल्लाह। नहीं, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये जो आप बुजुर्गों के नाम ले रहे हैं और फतावा रज़विया का हवाला दे रहे हैं, ये ज्यादा मुसद्दका है कि या कि मिर्जा साहब ज्यादा मुसद्दका है? देखें, बात ये है कि मिर्जा साहब की यहाँ पे तो बात आपने की, जो मिर्जा साहब की बात, उसमें तो दोनों तरह के हवाले हैं। दोनों तरह के हवाले को आपस में तजवीज पैदा हो रही है।
جہاں پہ آپ نے فرمایا مرزا صاحب نے حضرت مرزا صاحب نے کہ احتلام نہیں ہو سکتا، وہاں مراد یہ ہے کہ شیطانی احتلام نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر یہ واقعہ ہے کہ احتلام ہوا وہاں پر طبی تقاضوں کی وجہ سے احتلام ہو بھی سکتا ہے، تو تطبیق پیدا ہوگی نا محترم۔ اب میں کہہ لوں آپ بیچ میں؟ جی نہیں جناب، میں نہیں بولتا، فرمائیں۔ گزارا یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کے نزدیک یہ فتاوی رضویہ یا فتاوی رضویہ کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ والے علماء معتبر ہیں کہ مرزا غلام قادیانی معتبر ہے؟ میں نے تو آپ سے یہ بتائیں مولوی صاحب آپ کے لیے اچھا چلیے بولیں کم از کم تھوڑا سا آپ بولنے تو دیں نا جی، آپ نے بول لیا، میں نے سن رہا ہوں آرام سے، بتا دیجیے گا جب میری باری ہو۔ جی میں آپ کو اجازت دوں گا۔ دیکھیں یہاں پہ واضح طور پہ مرزا صاحب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو عبارت بھی سنائی۔ اچھا جی، اچھا یہ ہاں یہ سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 143 کے اوپر، ٹھیک ہے، اور روایت نمبر 150 ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ انبیاء سوتے جاگتے پاکیزہ خیالوں کے سوا کچھ نہیں رکھتے، واضح ترین عبارت ہے، واضح ترین، کچھ نہیں رکھتے، اور ناپاک خیالوں کو دل میں آنے نہیں دیتے، اس واسطے ان کو خواب میں بھی احتلام نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں مرزا غلام قادیانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو تو یہ برے خیال آتے ہی نہیں، شیطانی خیالات آتے ہی نہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ شیطانی خواب تو دوسرا خواب ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ مرزا صاحب نے تو واضح طور پہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احتلام ہوتا ہے نا، یہ شیطانی جو ہے نا خیالات کی وجہ سے، برے خیالات کی وجہ سے، گندے خیالات کی وجہ سے آتا ہے، اور جبکہ انبیاء کو یہ گندے خیال آتے ہی نہیں ہیں، یہ شیطانی خیال آتے ہی نہیں ہیں، یہ برے خیال آتے ہی نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو احتلام نہیں ہوتا۔ اب مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، ہم نے مرزا صاحب کی بات نہیں ماننی، ہم نے بات ماننی ہے فتاوی رضویہ کی، آپ کے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہمارا تو چھوٹا سا آئزانہ سوال ہے کہ بات آپ نے مرزا جی کی ماننی ہے کہ یا کہ فتاوی رضویہ کی بات ماننی ہے؟ آپ کے مرزا جی نے حوالہ چاہیے ہوگا، میں آپ کو حوالہ دے دوں گا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے مد مقابل کسی کو نہ لے کے آؤ، بات کریں آپ۔ جی جزاک اللہ۔ دیکھیں مولوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے بات کی کہ زیادہ معتبر کون ہے، تو آپ یہ تو پھر بات الٹ بھی سکتی ہے نا۔ آپ کے لیے زیادہ معتبر جو ہے وہ ظاہر ہے امام نبی ہوں گے یا آپ کے علماء ہوں گے، مرزا صاحب تو نہیں ہے۔ آپ بھی تو مرزا صاحب کے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں نا میرے سامنے، تو میرا بھی حق ہے کہ اسی قاعدہ قانون کے مطابق آپ کے سامنے آپ کے بزرگوں کے حوالے پیش کروں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کون سی روایت نمبر پڑھی ہے صفحہ 143 پہ؟ روایت نمبر کیا ہے جی؟ یہ جو صفحہ نمبر ہے، یہ جو آپ نے یہ جو صفحہ نمبر 143 کی روایت پڑھی ہے، اس کا روایت نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر 143 اور روایت نمبر 150۔ جی جزاک اللہ۔ میں نے صرف آپ کے منہ سے یہ کہلوانا تھا، یہ کیا ہے؟ روایت ہے مولوی صاحب، یہ روایت ہے، روایت کسی تیسرے بندے نے بیان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ مرزا صاحب کی تحریر نہیں ہے کہ آپ کو 100% اس کو لے کے بیٹھ جائیں۔ دوسری بات، اب تیسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو اگر اس طرح سے لے بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اسی سیرت المہدی کا صفحہ نمبر 757 کی تحریر پیش کی، اور آپ کے عوام نبی اور حافظ اسقلانی کے قول پیش کیے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے صفحہ 143 کی، اس پہ صرف اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کو کیونکہ شیطانی خیالات نہیں آتے، اس لیے اس قسم کا احتلام جو شیطانی خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے وہ انبیاء کو نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جو طبی تقاضے ہیں
एक बीमारी, आप ये देखें, बीमारी तो नबी को आ जाती है ना, नबी बीमार हो सकता है। तो अगर नबी बीमार हो सकता है तो बीमारी की वजह से जो एहतलाम होते हैं जिसमें शैतानी ख्यालात नहीं होते वो नबी को आ सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके बुजुर्ग, उन्होंने सही बुखारी और सही मुस्लिम की तशरीह में ये बयान किया है, इमाम हाफिज इस्कलानी ने और इमाम नबी ने। इसलिए मुझे मुझे अब ये मेरी आपसे दरखास्त है, अपनी इस बात से रुजू करें अभी लोगों के सामने। ये जो आपने मेयार नंबर 2 बयान किया था, अब ये कहें कि इसके ऊपर अभी 100% आपको गारंटी नहीं है कि ये बीमार बनता है कि नहीं, वरना फिर इमाम नबी और इमाम हाफिज इस्लामी के ऊपर फतवा दे दें कि वो गुमराह थे। जज़ाकल्लाह। बात कर ली आपने? जी जी जरूर, बिल्कुल खत्म। अब मैं करूं? फरमाएं। जी, गुजारिश ये, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं, मैंने आपसे ये बात पूछी, उसका तो जवाब आपने दिया ही नहीं। मिर्जा गुलाम कादियानी कुछ और बात कह रहे हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी की टक्कर के अंदर कोई और आलिम कोई और बात कह रहा है, वो पता नहीं कैसी है नहीं है, उसको हमने कोई लेना देना नहीं। अभी तो बात ये है कि ये आपके मुंह बोले नबी साहब हैं, रसूल साहब हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है। और ये अकली तौर पे भी ये बात महाल है कि नबी का तकाबुल उसके उम्मती से या आम लोगों से करवाया जाए। कहां पे नबी, कहां पे उम्मती, और इस तरीके से साबित करना कि देखो नबी ने ये काम किया, ये इसलिए काम किया कि वो छोटे बंदे, छोटे उम्मती ने भी तो ये किया था ना, तो ये कोई बात समझ में नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुद कहा, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 16 सफा नंबर 52 है, 52, खुतबा इल्हामिया के अंदर, कि फला तकीसूनी बि अहदिन वला अहदन ही। मिर्जा कादियानी कहते हैं कि मुझे किसी और के ऊपर क्यास मत करो और किसी और को मेरे ऊपर क्यास मत करो। मुझे किसी पर क्यास नहीं करना और किसी को मेरे पर क्यास नहीं करना, ये मिर्जा जी कह रहे हैं। मेरा आपको ये कहना है कि 100% फतावा रज़विया में वो बात लिखी है, मैंने अभी पढ़ी नहीं, जो आप कह रहे हैं 100% लिखी है, सचमुच की लिखी है। फतावा रज़विया मेरे पास मौजूद है, इसको हम साइड पे रखते हैं, ये देखें, ये हमने साइड पे रख दिया। उसकी वजह ये है, उसको साइड पे इसलिए रखा कि ये आपके मिर्जा जी कह रहे हैं, कहते हैं साइड पे रख दो, और हवालों को और चीजों को साइड पे रख दो जो मेरे मद्दे मुकाबला है। क्यों? कि फला तकीसूनी बि अहदिन वला अहदम बी, किसी और को मेरे ऊपर क्यास ना करो और किसी को मेरे ऊपर और मेरे को किसी और के ऊपर क्यास ना करो। ये मिर्जा जी कह रहे हैं, उन्होंने ये मियार बनाया है। मैंने ये कहा कि ये सीरतुल महदी के अंदर इनके बेटे कहते हैं कि मिर्जा जी ने ये बात कही है, और वो ये बात कही है कि अंबिया को जो एहतलाम नहीं होता, अंबिया को एहतलाम नहीं होता। क्यों? कि ये शैतान के वसावस की वजह से, शैतान के शैतानी ख्यालात की वजह से, गंदे ख्यालात की वजह से ये एहतलाम होते हैं। और चूंकि अंबिया जो होते हैं वो गंदे ख्यालात, शैतानी ख्यालात से पाक होती हैं, इस वजह से उनको एहतलाम नहीं होता। ये मिर्जा जी ने कहा है, ये मिर्जा जी ने बात कही है। आप कहते हैं नहीं जी वो इब्ने हजर अस्कलानी, तो वो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, वो फतावा रज़विया, वो आला हज़रत, मैं नहीं जानता। ये मियार मुझे आपकी किताब ने दी है, ये आपके मिर्जा जी ने कहा है, मैं और किसी को जानते ही नहीं इस मुकाम के ऊपर। जी जवाब दीजिए। अच्छा जी जी, जज़ाकल्लाह जनाब। मौलवी साहब, बात ये है, पहली बात तो अगरचे आप टॉपिक से इधर उधर हो गए हुए हैं, हालांकि आप हर कॉलर को कह रहे थे और उसको बकायदा झिड़क रहे थे कि जनाब मौजू से इधर उधर नहीं होना, ठीक है। पहली बात तो ये है मौलवी साहब कि ये मैं आपको दोबारा, आप शायद भूल जाते हैं बात को, मैं आपको दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये जो है ये एक रवायत है, ये हजरत मिर्जा साहब का अपना कलाम नहीं है। किसी शख्स ने, किसी सहाबी ने ये बात बयान किया वहां पे, ठीक है। और रवायत में आपको असूल रवायत पता ही होंगे, उसमें ये इस्तेमाल होता है कि इसमें किसी ने कुछ गलती किसी से हो जाए, कोई कम बात रह जाए, कोई ज्यादा हो जाए। आप कह रहे हैं ये गलत है, आप कह रहे हैं ये गलत है।
अच्छा एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं, मैं मिडल में नहीं बोला, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने ये जो जिल्द 16 और सफ़ा 52 का जनाब एक हवाला दे दिया, ये एक तो आप भूल जाते हैं मौलवी साहब, इसके ऊपर आपका और मेरा मुनाजरा भी हो चुका हुआ है और आप फिर भाग गए थे उस मुनाजरे से। ये जो आप मिर्जा साहब का हवाला पेश करते हैं ना, सफ़ा जिल्द नंबर 16 सफ़ा 52 के ऊपर, के पास मुझे किसी दूसरे के साथ कयास मत करो, ठीक है। मौलवी साहब मैंने आपको ये बतलाया भी था, इससे पिछला सफाई पढ़ लें तो मिर्जा साहब, और इसके आगे पीछे वाली तहरीरें पढ़ें, मिर्जा साहब यहाँ पर अपने और अपने जमाने के जो जो उलमा पीर फकीर उनके बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे उनके साथ कयास ना करो। यहाँ पे पहले लोगों की, बुजुर्गों की, पहले अंबिया की बात नहीं कर रहे, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है बात पूरी किया करें, वरना ये देखें ये तो यहूदियाना तहरीफ हो जाती है ना मेरे भाई, इस तरह अच्छा नहीं लगता। आप आलिम हैं, अब मेरी आपसे इस बारे में मुनाजरा हुआ, मैंने ये हवाला आपके ऊपर पेश किया उन दिनों में, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई बाद में, आप फिर वही हवाला पेश कर रहे हैं जो कि एक बात तय हो चुकी है। अब देखें सफा नंबर 51, हजूर वहां पे फरमाते हैं और वो मेहदी हूँ जिसका आना मुकर्रर हो चुका है, और वो मसीह हूँ जिसके आने का वादा था, और मैं अपने रब से उस मकाम पर नाज़िल हुआ हूँ जिसको इंसानों में से कोई नहीं जानता। अब कहाँ कौन किस जमाने के इंसान यहाँ पे कहते मुराद हैं? उस जमाने के, जाहिर है वो इंसान जो मिर्जा साहब के जमाने के थे। फिर अगला सुने, और मेरा भेद अक्सर अहलुल्लाह से पोशीदा और दूर तर है, कतई नजर इससे कि आम लोगों से इससे कुछ इतला हो सके। अब ये यहाँ पे उस जमाने के लोगों की बात हो रही है मौलवी साहब, और उसके बाद सफा नंबर 52 पर ये हजूर ने लिखा है, अगला आपस मुझे किसी दूसरे के साथ कयास मत करो और ना किसी को मेरे साथ, ठीक है। इसलिए और फिर आगे मजीद लिखते हैं, और मैं मगज हूँ जिसके साथ छिलका नहीं और रूह हूँ जिसके साथ जिस्म नहीं। इसलिए मौलवी साहब बड़े मोतबाना तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब हवाला दें तो एक बात तो ये कि पूरा हवाला दें, ताकि देखें कुरान पाक ने हमें कहा कूलू कौलन सिद्दीदा, सच्ची और खरी बात करो। दूसरी बात ये कि जब एक दफा बात हो जाए, हमारी तरफ से आपकी इस्लाह हो जाए कि मौलवी साहब ये पूरा हवाला नहीं है, तो अगली दफा अपनी इस्लाह कर लिया करें मौलवी साहब, बार बार हमें वही वाले में रिपीट करने पड़ते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा बकाया दोस्त अभी माइक म्यूट कर लें जिया भाई और अली भाई, तो चूंकि वॉइस रिपीट होती है तो आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अच्छा जी, एक तो मैं ये करेक्शन कर दूं डॉक्टर साहब कि आप ना वो चुटकुले बड़े छोड़ते हैं, तो चुटकुले वो मिर्जा साहब भी बड़े छोड़ा करते थे, तो आपको भी वो आदत है जी। आपने फरमाया जी मौजू बदल दिया, हाँ जी, तो वो सारे लोग दोस्त देख रहे हैं कि मौजू कौन बदल रहा है और कैसा मौजू हमने बदला। तो अच्छा ये भी एक चुटकुला छोड़ा आपने जी, वो मुनाजरे से भाग गए थे आप, ठीक है जी। तो जिस तरीके से अभी हम भागे हैं इस तरीके से पहले भी भाग गए थे। चले जी मौजू की तरफ आते हैं। बात तो आपने बताई नहीं जो हमने आपसे पूछा था कि आप या तो कह देना, सिरे से कह दे नहीं मानते भाई हम ये सीरतुल महदी को नहीं मानते, कमरुल अंबिया को नहीं मानते हम, ये कमरुल अंबिया का जो चांद है नहीं मानते हम, इसको नहीं मानते, इसने जो रवायतें हम नहीं मानते इसको। असल में वो है कि इन किताबों ने, खास करके सीरतुल महदी किताब ने जितना आप लोगों को जो है ना रुसवा किया है, तो वो सारी दुनिया जानती है कि सिर्फ एक किताब ही काफी है मिर्जा साहब की किरदार को समझने के लिए, उनकी जात को समझने के लिए एक किताब काफी है। और ये आप लोगों के गले का कांटा बनी हुई है, कांटा इधर अटका हुआ है। मौलवी साहब मौजू से इधर उधर चले गए हैं, बात सुनने। अब मैं मौजू पे ही हूँ और आपको मैं अब अभी नहीं बोलने दूंगा, मैं आपकी गुफ्तगू में नहीं बोला था, अब आप नहीं बोले। पहले भी मुनाजरे हुए ऐसे ही करते हैं, आप टों करके बीच में बोल पड़ते हैं तो वो फिर अगला बंदा भूल जाता है तो कोई बात जो कह रहा होता है, तो ऐसे नहीं। आप तो जैसे सुने, मैं तहम्मुल के साथ मैं आपको वक्त देता हूँ। मैंने दूसरे लड़कों का भी माइक म्यूट करवा दिया है, मैंने कहा चुप करके सुनो तुम। हालांकि वो ज़ियार सुलाया वो बड़ा वो हथियार लेके, तो अभी तो उसने बम फोड़ने हैं, तो वो मैंने कहा भाई तुम थोड़ा सब्र करो। अच्छा सुने, गुजारा ये है
کہ آپ کے قمرُ الانبیاء صاحب کہہ رہے ہیں, اور وہ اپنی بات وہ بندہ بیچارہ خود بھی نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا حضرت مسیح موعود صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے میرے ابا جی. اور قمرُ الانبیاء کون ہے؟ وہ مرزا قادیانی صاحب کے بیٹے بشیر احمد احمد صاحب, اور وہ کہتے ہیں جی میرے باپ نے یہ بات کہی ہے. آپ کہتے ہیں جی روایت کا کوئی اعتبار ہی نہیں. یہ کوئی جواب ہے؟ وہ روایت ہے نا, روایت ہے نا, روایت ہے نا. تو یہ تو قرآن پاک بھی روایت ہے, قرآن بھی روایت ہے. تو روایت کیا روایت کو مانتے نہیں ہیں؟ یہ کہہ کے کہ روایت ہے, روایت ہے, یہ روایت ہے نا, یہ کوئی جواب ہے کہ یہ روایت ہے نا جی؟ میں یہی آپ کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا, یہ روایت ہے, کہلوا لیا. ایسے نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. یہ لوگوں کی آنکھوں کے اندر دھول آپ کسی اور کو جا کے جو کیے گا, وہ دوسرے لوگوں کو جا کے آپ کم از کم کسی صاحب علم کے سامنے آئے تو کم از کم اپنے ہوش و حواس جو ہے نا وہ ٹھکانے لگا کے سنبھال کے, تو وہ ورگ لانا نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولنا, فریب کاری سے کام نہیں لینا. مجھے جواب دیں کہ آپ کے قمرُ الانبیاء نے جو بھی روایت مرزا قادیانی لکھا ہے, آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ اگر تو یہ صحیح نہیں ہے تو کیوں؟ آپ بتائیں واضح ترین. کیا آیا آج تک کسی آپ کی کتاب کے اندر, کسی اشتہار کے اندر, کسی ایم ٹی اے چینل کے کسی پروگرام کے اندر کسی جگہ بھی لکھا ہو کہ ہم سیرت المہدی کو نہیں مانتے؟ اس کے اندر تو روایتیں ہی ہیں نا, روایت نہیں مانتے ہم. تو ادھر تو بڑے میں نا پیار محبت سے اور پھولوں پہ ہار لگا کے آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ کتاب رکھی ہوئی ہے الاسلام.org کے اوپر, نکال باہر پھینکے. کسی چینل کے اوپر بیٹھ کے پورا پروگرام کریں اس کے اوپر, بلکہ ایک پروگرام نہیں, ایک روایت کے اوپر ایک پروگرام کریں پروگرام. اپنے الفضل اخبار کے اندر نکلوائیں کہ ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, آئندہ سے ہمارا سیرت المہدی کے اندر اس سے کوئی ہم نہیں مانیں گے اس کا حوالہ. یہ سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا جی جو ہے نا وہ لٹرین کے اندر فوت ہوئے تھے. ہاں جی, مرزا صاحب جو ہے نا وہ بھائی حیضے کا شکار ہو کے فوت ہوئے تھے. وہ غیر محرم عورتوں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے, سٹرنگس وائن اور پورٹ وائن پیا کرتے تھے, اور اس طرح کی ساری حرکتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ آپ لوگوں کے گلے کا کاٹا بنی ہوئی ہے یہ کتاب. برات کا اعلان کیوں نہیں کرتے آپ؟ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, بولیں. اچھا دیکھیں مولوی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے پھر, لوگ سن رہے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جس موضوع کے لیے خاکسار نے کال کی, آپ اس موضوع سے یوں دوڑے ہیں کہ آپ تو اللہ ہی مالک ہے. لیکن بہرحال لوگ سن رہے ہیں, جب ویڈیو بنے گی تو دیکھ لیں گے. دوسری بات یہ ہے, اہم بات یہ ہے مولوی صاحب, جو بات میں نے ضمنی طور پر کی کہ یہ دیکھیں, اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ روایت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایسی روایات ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آتی ہیں جن کے اوپر پھر ملحدین اعتراض کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ روایت ہے, بھائی یہ خدا کا کلام نہیں ہے, کسی صحابی نے بیان کر دی, اس میں غلطی کا احتمال ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے آپ کو صرف توجہ دلائی تھی. جہاں تک سیرت المہدی کی اس روایت کا, ان دونوں روایتوں کا تعلق ہے, روایت نمبر 143 اور روایت نمبر 843. ٹھیک ہے, اور جناب مولوی صاحب آپ مت بھولیں کہ میں نے آپ کو واضح طور پر یہ بتلا دیا ہے کہ ان دونوں روایتوں میں تطبیق پیدا ہوئی ہے. اور یہ جو میں نے عوام نبی کا اور یہ حافظ اسکانی صاحب کا قول بیان کیا, جو آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے کتابہ رضویہ میں بیان کیا ہے, اس کی روشنی میں تو اس میں تطبیق پیدا ہو گئی ہے. تو آپ کی یہ جو باقی آپ نے پورا لیکچر دیا سیرت المہدی یہ اور سیرت المہدی یہ, اس کی تو ضرورت ہی نہیں باقی رہتی. چوتھی بات, آپ نے خطبہ الہامیہ کے صفحہ نمبر 52 کا جو حوالہ دیا, صفحہ نمبر 51 نے اس کے آپ کے حوالے کو جو آپ اس کا جو مطلب نکالنا چاہ رہے تھے, آپ کے مطلب کو غلط ثابت کر دیا. اب آپ کو چاہیے عوام الناس کے سامنے معذرت کریں کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو گئے, اتنے بڑے علامہ ہو کر آپ نے صفحہ نمبر 52 میں اردو بھی لکھی ہوئی ہے, عربی بھی لکھی ہوئی ہے. آپ نے آگے پیچھے کیوں نہیں دیکھا کہ مرزا صاحب تو اس زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ, اور یہ آپ کو پتا ہے, صرف آپ نہیں ہیں, آپ کے علاوہ بھی بعض احباب
ये सफ़ा 52 की तहरीर को बार बार पेश करते हैं कि किसी दूसरे पर मुझको क्यास मत करो, हालांकि ये उस जमाने के लोगों की के बारे में ये बात है, और आपने इसको अब टच नहीं किया। और ना, मेरा ख्याल है, आपकी मर्जी है, आपने अगर करना हो तो कर लें, लेकिन मौजू से इधर उधर जो बंदा पहले लोगों को डांटता था वो इधर उधर जा रहा है, तो लोग जरूर अंदाजा लगाएंगे कि मौलवी साहब अब क्या हो रहा है। अच्छा, एक और बात, आपने आखिर पर मौलवी साहब एज यूजुअल जो आपकी आदत है, आप असल बात से हटने के लिए आपने कभी वो लैट्रीन और वाइन और गैर मुहर्रम औरतें और महरम औरतें ये वो कहने लगे। मौलवी साहब, बात ये है, ये जो लैट्रीन वाली बात आप बार बार करते हैं, ये मैं आपसे, आपका और मेरा मुनाजरा इसके ऊपर भी हो चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे आपके ऊपर फिर एक सवाल है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये बयान करती हैं, ये जो हदीस है, ये तबकात इब्न साद में भी मौजूद है, ये सुनन निसाई में भी मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले आपने एक तख्त मंगवाया, उसमें पेशाब किया और आप ढीले पड़ गए, यानी कि आपकी वफात हो गई। तो इसलिए मौलवी साहब, मैं बड़े मुतबाना तौर पर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ऐसी बातें ना किया करें जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाके पढ़े, ठीक है। ये गलत मेयार हैं, ये इस्लामी मेयार नहीं है, ये आप लोगों ने घर से बना रही हैं मौलवी साहब। वरना हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको आपसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का पता था, वो ये रवायत क्यों बयान करते? ठीक है मौलवी साहब, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ अपनी बात के ऊपर जहाँ से बात चली थी। इख्तिलाफ वाली जहाँ तक बात है मौलवी साहिब, मैंने तस्दीक पैदा कर दी है दोनों रवायात में। अवाम नबी ने आपको झुका दिया है, अवाम हाफिज अस्कलानी ने आपको झुका दिया है कि आपका ये मेयार गलत है। नबी को जो है वो ज़ियादत फुजला या किसी बीमारी की वजह से इख्तिलाफ हो सकता है, तो आप इकरार करें इस बात का। जज़ाकल्लाह। चले जी, मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा के अंदर तो ये बात बता दूं कि आपने कहा जी मुल्हिदीन ये इतराज करते हैं इन रवायतों के ऊपर, ठीक है जी, रवायतों के ऊपर जो आपने पढ़ के भी सुनाई, वो बोलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय्यब व ताहिर के ऊपर आपने कलाम किया कि वो रवायत के ऊपर मुल्हिदीन इतराज करते हैं। तो आपके भाई लोग जो मुल्हिदीन है ना, वो तो कुरान के ऊपर भी इतराज करते हैं, वो सिर्फ हदीसों के ऊपर ही इतराज नहीं करते, वो तो कुरान के ऊपर भी करते हैं, ठीक है। ये उस बात का जवाब हो गया। और मैं आता हूं फतावा रज़विया के ऊपर, जो फतावा रज़विया का आपने झूठ और किज़ब बयानी से काम लिया। फतावा रज़विया मेरे सामने ओपन है और जिल्द 15 का हवाला दिया है। मेरे पास जो मतबू है ये इंडिया का है, पूर बंदर गुजरात का, मरकज़े अहले सुन्नत बरकाते रज़ा का, और इसके सफ़ा नंबर 100, 155, 155, 56, 57, 58, 59 पे जाके तकरीबन खत्म हो जाता है। अच्छा जी, इब्तदा जवाब की जो इब्तदा करते हैं वो इसी चीज से करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है जी, चलिए, वो इसी चीज से जवाब की इब्तदा कर रहे हैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कि कभी किसी नबी को इख्तिलाम ना हुआ, इख्तिलाम तो नहीं मगर शैतान की तरफ से है। और पूरे फतावा के अंदर आपने इसी चीज को साबित किया। और जनाब, आप वो जो सफ़े का हवाला दे रहे थे उसके अंदर लिखा गया है, वो काब अखबार रहमतुल्लाह तआला अलैह वाला जो सफ़ा 156 आपने बताया है, उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि ये जो कलाम है ना, ये जो हवाले आप दे रहे हैं, वो फरमाते हैं होवा कौलुन मुनकरुन जिद्दन, वो तो बहुत ज्यादा मुनकर कौल है। ये कौल तो बहुत ज्यादा मुनकर है, ना काबिल कबूल है, इनकी कोई सनद नहीं है, इनकी जो जनाब इनकी सदाकत नहीं है इनके अंदर, मुनकर है, मुनकर। और जिद्दन, बहुत ज्यादा, ये लफ्ज नहीं आपको नजर आए? लोगों को क्यों झूठ बोलते हैं आप? हाँ जी, एक तरफ मुझे आप बता रहे हैं सफा आगे से पढ़ो 10 सफे, तो पीछे से 10 सफे लेके पढ़ो। हाँ जी, किताब पूरी खोल के पढ़ो, तो ये एक सफे के अंदर ही एक चीज लिखी है, आपको ये वो चीज नजर नहीं आई? बार बार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने बार बार इस चीज को रिपीट किया और
کہا کہ کتنے حوالہ جات, فرمایا کہ آخر میں وہ فرماتے ہیں, نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار, جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. اس قسم کی جو روایتیں ہیں وہ ہیں ہی نہیں, لوگوں نے غلط ملت رگڑی ہوئی ہیں. اور رہی بات کہ فلاں نے کہا کہ کوئی مولوی ہمارے لیے حجت نہیں ہے, کوئی مولوی حجت نہیں ہے. ہاں اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اجماع امت ہے کہ نہیں, علماء کا اجماع ہے کہ نہیں, پھر اس کو قبول کیا جائے گا. شاذ قول جو ہوتا ہے اس کا ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ الشاذ کل معدوم, شاذ جو ہوتا ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. 1000 بندہ ایک طرف ہے, ایک بندہ الگ ہی منہ اس نے اٹھا لیا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے, اس کو جانے دو. بات اس 1000 بندے کی مانی جائے گی. تو ایک آدھ نے اپنی ایک رائے سے کوئی بات کہہ دی کہ یار یہ ہو سکتا ہے یہ بات ایسے ہو, وہ ناقابل قبول ہوتا ہے. میاں اس پورے فتاوی رضویہ کے اندر یا تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہو کہ نبیوں کو بھی احتلام ہو جاتے ہیں, وہ شیطانی ہوتے ہیں تو وہ رحمانی ہوتے ہیں. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ پورے فتاوی رضویہ میں کہیں نہیں ہے. آپ اس صفحے کو چھوڑیں, اس فتوے کو چھوڑیں, پورے فتاوی رضویہ کا چیلنج ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کے یہ قمر الانبیاء صاحب نے لکھا ہے کہ میرے ابا حضور یعنی مرزا غلام قادیانی, انہوں نے کہا ہے کہ نبی کو احتلام نہیں ہوتا. وہ باتیں میں نے ساری کر دی ہیں. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, لائے کوئی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی الہام ہوا, لیکن حدیث صحیح ہونی چاہیے, وہ اسی سے چھوڑو چھڑائی نہیں ہونی چاہیے. حدیث لے کے کسی نبی کو بھی احتلام ہوا ہو لے کے روایت لے کے, جبکہ مرزا غلام قادیانی صاحب کو احتلام ہو رہا ہے, ہم نے آپ کو وہ ثابت بھی کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ روایت ہے, کریں بات. جی مولوی صاحب وہ آپ کو لگتا ہے غصے میں آ گئے ہیں, آرام سے بات کریں. اچھا نہیں لگتا, آپ لگتا ہے بالکل ہی ہفتے سے باہر ہونے لگے ہیں. اچھا بات یہ ہے مولوی صاحب, میں اپنا صرف فتاوی رضویہ پہ رہوں گا. یہ جو بات ہے میں باقی باتیں نا اپنی کروں گا. بات یہ ہے کہ میں نے کب یہ کہا ہے اپنی پوری اس بات میں کہ آپ کے جو امام احمد رضا بریلوی صاحب ہیں انہوں نے یہ بات مانی ہے. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. میری دلیل تو سمجھ لیں. میری دلیل یہ ہے کہ آپ کے احمد رضا بریلوی صاحب نے اپنے اسی حوالے میں جو میں نے بیان کیا ہے, اسی صفحے پر جو آپ نے پڑھا ہے, کیا انہوں نے وہاں پہ یہ نہیں لکھا؟ فرماتے ہیں ہاں, یعنی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. ہاں امام نووی و حافظ اسقلانی نے شروع صحیح مسلم و صحیح بخاری میں اس کی یہ تعویل نقل کی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فیضان زیادت فضلا بسبب ابتلاء عدیہ منع نہیں اور اسے مقرر رکھا. تو مولوی صاحب میں تو حافظ اسقلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں تو عوام نبی کی بات کر رہا ہوں, اور فتاوی رضویہ سے بیان نہیں, درمیان میں نہیں بولنا, درمیان میں نہیں بولنا. نا آپ نے مجھے منع کیا تھا, درمیان میں نہیں بولنا. نا مولوی صاحب صبر کریں, قانون دونوں کا سیم ہے. ابھی لوگوں کے سامنے دجل فریب آ جائے گا. مقرر رکھا سے آگے پڑھیں, فتاوی رضویہ کی عبارت آگے پڑھیں, اسی مقرر رکھا کے آگے. ہاں جی, یہ اب امام احمد رضویہ صاحب کی یہ اب آپ کا دجل سامنے آنے لگا ہے. احمد رضا, ہاں میں پڑھنے لگا ہوں. احمد رضا بریلوی صاحب یہاں پہ اپنی رائے دے رہے ہیں, قول مگر لفظ شنیع و مکروہ ہے. یہ ان کی اپنی رائے ہے, میں تو ان کی رائے لے نہیں رہا. میں تو احمد رضا بریلوی کی رائے لے نہیں رہا جناب. اچھا مجھے بولنے دینا, اور مجھے بولنے دے جناب, اب بولنے دے مجھے. کیا بے تابی ہے مولوی صاحب, میں بھی تو آرام سے بولا ہوں, آپ سے انتظار کیا ہوں آپ کا. اب میں بول لوں, یہ عبارت پوری پڑھ لیں تو پھر بولے آپ. میں نے اس عبارت میں سے جو امام نبی اور حافظ اسقلانی کا وہ قول جس کو امام احمد رضا بریلوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہاں انہوں نے یہ کہا ہے, میں نے وہ پڑھا ہے.
کیا یہاں پہ یہ قول نہیں لکھا ہوا امام حجر حافظ اسقلانی کا اور امام نبی کا؟ عبارت پوری پڑھیں، عبارت پوری پڑھیں۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب اس عبارت میں اس کے علاوہ جو آپ کے امام ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ آپ کے امام ہیں، ٹھیک ہے، میں اس سے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کہتے رہے اعلیٰ حضرت صاحب جو مرضی کہیں۔ اس میں لکھا، ہاں اس سے پہلے پڑھے نا جی، آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، ہاں رکھے یہیں پہ، ہاں میں اب آپ سے پڑھ رہا ہوں، ہاں امام نووی و حافظ اسقلانی نے شروع صحیح مسلم و صحیح بخاری میں اس کی یہ تعویل نقل کی۔ اب میں اپنے سے پڑھنے لگا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام پر فیضان زیادت فضلہ بسبب ابتلاء عقیدہ منع نہیں اور اسے مقرر رکھا۔ تو صاحب بات تو میں نے ان کی دونوں کی کر رہا ہوں۔ اچھا ایک اور بات اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے اس جذباتی بیان میں مولوی صاحب ٹھنڈا پانی شانی پی لیں، آپ نے امام نبی کو بھی پاگل کہہ دیا، نعوذ باللہ حافظ اسقلانی کو بھی پاگل کہہ دیا، تو وہ تو پاگل تھے، کہتے ہیں جی ہم اکثریت کی مانیں گے، اقلیت کو لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں، وہ آپ کے امام ہیں جناب مولوی صاحب، اتنی بھی کون سی بات ہوگی؟ آپ نے اپنی خاطر آپ نے اتنے بڑے بڑے اپنے علماء کے اوپر کیا آپ گمراہ قرار دے دیا ان کو، آپ نے ایسی ایسی باتیں کر دی، اس لیے یہ اچھا نہیں لگتا۔ آخری بات میری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ قمر الانبیاء نے یہ لکھا ہے، اور میں نے تو دونوں روایات میں تطبیق پیدا کر دی ہے اور آپ کے حوالے کے ذریعے سے کی ہے، تو اس لیے میں نے تو اپنی بات پوری کر دی ہے۔ اور یہ جو آپ نے آخر پہ بات کی کہ آپ کہیں پہ ثابت کریں کہ انبیاء کو شیطانی علام ہوتا ہے، اور میں کیوں ثابت کروں؟ میرا تو سٹینڈ یہ ہے مولوی صاحب کہ انبیاء کو شیطانی احتلام نہیں ہوتا، شیطانی احتلام نہیں ہوتا۔ اور مرزا صاحب کے بارے میں بھی جو روایت آئی ہے، وہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ شیطانی احتلام ہے؟ سفر میں تھے، ٹھیک ہے، سفر میں 100 اور باتیں ہو سکتی ہیں، اور نیند کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اور بیماری ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے میرا آخر پہ پھر وہی میں بات کر رہا ہوں مولوی صاحب، ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نے جو اپنا معیار نمبر 2 مقرر کیا تھا وہ بالکل غلط ہے، امت کے علماء اس کے اوپر متفق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اپنے اس معیار کو درمیان سے نکال دیں اور لوگوں سے معذرت کر لیں۔ جزاک اللہ، اب میں کال بند کرنے لگا ہوں۔ نہیں رکے اور رکنے جائے نہیں، بند نہیں کرنی کال، چلے میں ہوں، ہاں میں، لیکن موضوع یہی رہے گا، موضوع یہی رہے گا۔ ابھی میرے بولنے سے اچھا ایک منٹ ہے، آپ نے اس بات کا بیان نہیں کیا مولوی صاحب جو میں نے کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشت منگوایا، آپ نے اس میں پیشاب کیا اور آپ کی وفات ہو گئی، آپ کیا ایسے نبی کو ڈاکٹر صاحب خلطے محبت سنانا کریں؟ ابھی نہ آپ نے لیٹرین کی بات کی تھی کہ نہیں؟ آپ نے خود بات یہ چھیڑی تھی، میری طرف سے اس کا یہ جواب ہے، آپ کے معیار غلط ہیں، اسلامی نہیں ہیں، قرآنی نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معیار کو دھتکارتی ہیں، ٹھیک ہے مولوی صاحب، اس کا جواب دیں۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نعوذ باللہ انکار کریں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں؟ جی بولے، بیچ میں اگر بولنا ہے تو ابھی بول لیں آپ۔ مولوی صاحب آپ بھی تو بول لیتے ہیں، اب میرے لیے منع، پھر میں نہیں بولوں گا ویسے، لیکن بات وہ کریں جس پہ آپ خود بھی عمل کر رہے ہوں۔ جزاک اللہ۔ چلے چپ کریں، چلے اب چپ کریں۔ ضیاء رسول آپ کچھ کہنا چاہیں گے بھائی کہ میں ہی بات کروں؟ کافی دیر کے بیٹھے۔ وعلیکم السلام، تسی انٹری مار لو۔ یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ بڑی سونی آواز آ رہی ہے، بولو۔ اچھا پہلے تو میں یہ یحییٰ صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے کہ اس کی آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ یحییٰ صاحب اگر دوبارہ موقع ملے تو بتائیے گا آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ آپ بڑے لمبے عرصے بعد آپ سے ٹاکرا ہوا ہے اور آپ کی آواز ایسے کانپ رہی ہے جیسے پتہ نہیں کو کڑکی، بھائی بات ہی ہو رہی ہے نا، کوئی تلوار تو نہیں لٹکائی ہوئی آپ کے سر پہ؟ آپ ایسے کانپ رہے ہیں، آپ کی آواز سے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بڑی کوئی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ یحییٰ صاحب جو ہے نا، یہ ڈرامے بازی کرنے میں بڑے مشہور ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ اس نے ایک بات کی ہے کہ جی مرزا صاحب نے جو آپ نے بات کی تھی نا کہ قیاس، مرزا صاحب نے اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کی ہے کہ ان پر قیاس نہ کرو، تو یہ میری یحییٰ صاحب سے درخواست ہے کہ ذرا اس بات کا جواب دیجیے گا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को जितनी भी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को अफजल और आला हर लिहाज से मानते हैं या नहीं मानते? इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप इनकार करें या इकरार करें, जो भी करें, क्योंकि आपने कहा है ना कि सिर्फ अपने ज़माने के लोगों के बारे में कहा है कि उन पे क्यास ना करो, बाकियों के साथ कर सकते हैं, तो इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा जनाब, आपने ये जो कहा कि जी वो शैतानी इल्हाम नहीं हो, सॉरी शैतानी एहतलाम नहीं हो सकता, बीमारी वाला हो सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब को बीमारी वाला एहतलाम भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप मिर्ज़ा साहब के बारे में ये कहेंगे कि उनको बीमारी वाला एहतलाम हुआ, तो आपके मिर्ज़ा साहब झूठे हो जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि वो कहते हैं ना, फस गई जान शिकंजे अंदर ते जिमें वेलने विच गन्ना। ये वो मंजी मैंने एक शेयर की थी कुछ अर्सा पहले ये फेसबुक पे, जिसके वो एक तरफ से सीधी करो तो दूसरी तरफ से उल्टी हो जाती थी। आहो, ये मिर्ज़ा साहब आप कहते हैं बीमारी वाला एहतलाम मिर्ज़ा साहब को हो सकता था और ये जायज़ है और हुआ, मैं कहता हूँ नहीं हो सकता मिर्ज़ा साहब को बीमारी वाला एहतलाम, क्योंकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरे खुदा ने मुझे कहा हमने तेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है। एक केड़ा खुदा सी जिन्हें सेहत का ठेका लैन तो बाद भी बीमारियां ला छड़ियां, ये जरा मुझे आपने बताना। हमें इनकार नहीं है, ओए होए बीमारी होए, हर इंसान को हो सकती है, अंबिया कराम को भी बीमारी लाक हो सकती है, लेकिन जेड़ा बंदा कह दे मैं अल्लाह दा नबी हाँ ते मेरे खुदा ने मेरे नाल वादा किया मैं तेरी सेहत का ठेका लिया, जी हमने तेरी सेहत का ठेका ले रखा है। खुदा ने इल्हाम एहतलाम कहने लगा सी, इल्हाम कह देता, एहतलाम किया मिर्ज़ा साहब को कि भाई ये हमने तेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है। और मिर्ज़ा साहब आपके नबी ठेके की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा खुदा ने ठेका लिया हुआ है, तू चौधरी कितों आ गया खुदा दे ठेके इधर उधर करने वाला, तू कहना नहीं बीमारी वाला हो सकता। इसका जवाब दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और दूसरा करें, खा पी क्या करें, आपकी आवाज़ बड़ी कांप रही थी, शुक्रिया यार तू भैया मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ। डर साहब नहीं आ जाते, मैं बोलना जी की नहीं, जब आपने अपनी आपकी बारी खत्म होगी मौलवी साहब, आपने अपनी बारी जार साहब को दे दी। ना इतना नहीं चलेगा। एक बारी आपने अपनी बारी जार साहब को दे दी, अब चुप करके सुने। पहली बात यह है मौलवी साहब, सारी दुनिया देख रही है कि मौलवी मुबशर शाह साहिब हैं जी, उनको अब मदद की जरूरत पड़ी है ना, ज़ियार रसूल को लेके आए ना मिडल में कि शायद मुझे कोई मदद मिल जाए, नहीं मिली। मैं अभी आपको बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़ियार रसूल साहब फरमा रहे हैं कि मेरी आवाज कांप रही है। और भाई जब कोई मौलवी साहिब हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात करें, ऐसा मेयार पेश करें जिसकी जद में मेरे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हो, तो मेरी आवाज कंपेगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे नबी हैं वो, इसलिए मेरी आवाज कंपती है। ठीक है जी। दूसरी बात आपने कहा, उन्होंने कहा जी वो आप नबी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी लोगों से मिर्जा साहब को अफजल मानते हैं कि नहीं मानते? जनाब ज़ियार रसूल साहब, आपको तो फिर पता ही नहीं कि हम मिर्जा साहब को मानते क्या हैं। हम हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को वही मुकाम देते हैं जो आप लोग आने वाले इमाम मेहदी और ईसा मसीह को देते हैं। क्या आप अफजल मानते हैं या नहीं बाकी उम्मत के बुजुर्गों से? अगर आप मानते हैं और हम मिर्जा साहब को वही मुकाम देते हैं, आप ये कह लें जी आप नहीं मानते, आप कह लें जी मिर्जा साहब का आप वो मुकाम नहीं मानते, लेकिन जो भी वजूद आएगा आप भी तो वही मुकाम देते हैं। अगर हमने दे दिया है तो वही ज्यादा आपके ऊपर भी तो करती है ज़ियार रसूल साहब, इसलिए बात करने से पहले सोच लिया करें। आखिरी बात, आपने हजरत मिर्जा साहब के एक इल्हाम को गलत तौर पर अवाम के सामने बतलाया, और क्योंकि अब आपने गलत बयानी की है, मैं मजबूर हूं कि मैं आपकी तस्दीक करूं और अवाम को बताऊं कि ज़ियार रसूल साहब ने जो इल्हाम असल में जो वाकया हुआ है उसके बारे में झूठ से काम लिया है। ये जो इन्होंने कहा कि मिर्जा साहब को तो अल्लाह ताला ने ये कहा था हमने तेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है, ये इन्होंने इस तरह बात की कि गोया अल्लाह ताला की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई थी कि जी मैंने तेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है, तू बीमार ही नहीं होगा। ज़ियार रसूल साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वो जो रवायत है अगर आपके सामने मौजूद है तो निकालें, लोगों को दिखाएं। वहां पर रवायत ये है कि हजरत मिर्जा साहब बीमार थे, आपने जब बार बार दुआएं की तो अल्लाह ताला ने वहां पर सवालिया तौर पर ये कहा कि हमने तेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है। ठीक है, और फिर साथ ही अल्लाह ताला ने आपको एक रास्ता दिलाया जिसके को इस्तेमाल करके आपको शिफा भी हो गई।
आगे सवालिया निशान भी डाल देना था ना, क्या हमने तेरी सेहत का ठेका लिया हुआ है? और भाई ये अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने। आप कौन होते हैं? आपको कभी इल्हाम हुआ है? हाँ जी, आपको कभी इल्हाम हुआ है मौलवी साहब? है जी? नहीं अच्छा ਅਸੀਂ ਨਮਰਦ ਤੇ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, मैं जब मौलवी साहब देखें, आपने बदकलामी करनी है तो मैं बंद कर देता हूँ। जब आपने मैंने बदकलामी करनी है तो फिर कोई बंदा आके कहेगा देखें मौलवी साहब कैसी बात कर रहे हैं। जब मैंने क्या नई क्या शादी अंबिया बीमार नहीं होते हैं? क्या हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बीमारी नहीं हुई थी? फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हरीसा आके बतलाया तो आपकी जो मकदमी ताकत थी वापस आई। कैसी बात कर रहे हैं मौलवी साहब? फिर मेरी आवाज तो कांपेगी ना। आप एतराज वो करते हैं जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके पढ़ते हैं। मेरी आवाज क्यों ना कांपे? मैं उनका उम्मती हूँ। ऐसे एतराज मत करें मौलवी साहब। जज़ाकल्लाह। अच्छा चले जी, मैंने बोलना है। ज़िया रसूल को तो वैसे ही हमने कॉल के अंदर वो शामिल किया था, जवाब तो मुझे आपने देने नहीं दिया। अच्छा जी, मैंने नहीं देने दिया मौलवी साहब, गलत बात नहीं गलत नहीं ना करें। मैंने आपको मौका दिया, आपने ज़िया रसूल साहब को आगे माइक पेश किया, ठीक है? ये तो इसकी हालत ही गैर हो गई है, इसको कुछ हो जाना है, इसको पानी शानी पिला दें, बड़ी मेहरबानी होगी। और ये बड़ी मजे की, मैं बड़ा यकीन करो कन्ना तक मैं खुश हाँ। कहता वो जी हमारे नबी साहब ने खुदा से दुआ की, मैं बीमार हो गया, मेरे ठीक कर दे। खुदा कहना मैं सेहत दा ठेका लिया। वाह यार, कहना मैं ज़िया रसूल मैं तज़किरा भी खोल लईए। मैं इन्हां क्या क्या सवालिया निशान भी पा दे रहा थी। आज नवी छड्डी है। बंदों का हाल देख रहे, एक तरफ से कह रहा है कि खुदा ने आगे से कह दिया मैं तेरी सेहत का ठेका लिया, दूसरी तरफ से कह रहा है खुदा ने शिफा भी दी। तो केड़ा खुदा सी? ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਭੀ ਅੱਜ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹੋ ਚਲੋ ਵੇ ਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਭਾਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਛੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ही काफी है। ऐसा जी, बात इतनी सी थी, वो बात का बतंगड़ ही बना दिया डॉक्टर साहब ने। हाँ जी, बात का बतंगड़ बनाना वो तो इनको कादियानी मर्दियों से सीखे जनाब। छोटी सी बात को पकड़ के बंदे का मुंह मशरक की तरफ होगा, ये उसको घुमा के मगरब की तरफ कर देंगे। वो कहेगा, आंखें खोलेगा, यार अभी तो मैं इधर मशरक की तरफ था, ये चला किधर गया? ये नहीं पता चलता कि ये वो मुरब्बी साहब ने कर दी है। तो बात ये हो रही थी कि आपके कमरुल अंबिया साहब मिर्जा कादियानी के बेटे, वो अपनी किताब सीरतुल महदी के अंदर लिखते हैं कि मिर्जा जी ने कहा है कि अंबिया को इल्हाम यानी इख्तिलाम, सॉरी, तो इख्तिलाम नहीं होता, क्योंकि ये शैतान की वजह से होता है। और शैतान चूंकि शैतानियां करता है तो गंदी बातें ख्वाब में आती हैं, गंदी हरकतें होती हैं, तो वो उसकी वजह से वो फिर इख्तिलाम होता है। ये आपके ये कमरुल अंबिया साहब ने लिखा है, कमरुल अंबिया सीरतुल महदी के अंदर मिर्जा साहब की बात को लिखा है। आप कहते हैं नहीं जी ये रुवायत है, रुवायत का कोई इतबार नहीं। हमने आपसे ये कहा था इसका इनकार कर दें, उसका जवाब आपने दिया ही नहीं। इसका इनकार साबित करें। आज तक किसी दुनिया के किसी मर्दई ने कहा हो कि सीरतुल महदी हमारी किताब नहीं है, हम इसके मुनकिर हैं, हम इलाने बरात करते हैं, ये चैलेंज है मेरा। आज तक ये डॉक्टर जैया को कौन जानता है? वो आपके सारे जो है ना, वो आपको वो कई ऐसे हैं वो जूतियां लगाते हैं। आपके मुरब्बी वो कहते हैं डॉक्टर यही ऐसे ही जो है ना वो वीडियो मेकर है, वीडियो बना के सुटे जा रहा है, ये रोजी रोटी को धक्का दिया हुआ है। हाँ जी, पैसा कमाने के लिए ये ड्रामे रचाए हुए हैं। ये आपके अपने लोगों की बातें हैं, कहते हैं तो मैं भी आपको सुना देता हूं, हमारे पास सारे सबूत मौजूद है। तो बात ये है कि वीडियो आपने कहा था वीडियो बनेगी तो देखी जाएगी, वीडियो बना लेना आप। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब चाहिए कि इस सीरतुल महदी का आप इलाने बराअत कर दें या साबित कर दें कि कभी आप लोगों ने इसका इलाने बराअत किया हो, कहा हो कि इस सीरतुल महदी नामी किताब से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं आपको कहता हूं कि आपके अपने टाइम के अंदर इस चीज का जवाब देना है आपने, इसका इलाने बराअत आपने साबित करना। चलें जी बात करें। जी मौलवी साहब, बात ये है, पता नहीं आप ज्यादा ही परेशान हो गए। आपको मैं इसका जवाब दे चुका हूँ मौलवी साहिब।
2 दफा दे चुका हूँ। मैंने दोनों दफा आपको ये अर्ज किया कि मौलवी साहब वहां इनकार करने की जरूरत पड़ेगी जहां पर तस्दीक पैदा ना हो सकती हो। ये तो रवायत नंबर 143 और रवायत नंबर जो 843 है, इसमें अल्लाह के फजल से, महज अल्लाह ताला के फजल से, आपके आला हजरत के बयान करदा फतावा रिजविया में वो जो अवाम नबी और हफज इस्लामी की जो उन्होंने बात लिखी है, उसके जरिए इसमें तदबीक पैदा हो गई है, इनकार का सवाल ही पैदा होता है जी। अच्छा एक ठीक है, इसलिए अब आप बार बार ये बात ना करें कि जनाब इनकार की जरूरत नहीं है, मैं भी इनकार कर दूं। दूसरी बात ये है कि देखें अब ये भी आपकी अब बुकलाहट दिखला रहा है मौलवी साहब। अब मैं भी कह सकता हूँ कि मौलवी बशर को तो इतने लोग जूतियां मारते हैं। मेरे सामने लोगों ने फोन करके मुझे बताते हैं कि वो जो आपके आपस से इख्तलाफ हैं आपके लोगों के, आपके अपने जो बड़े बड़े हैं, ये ना बताएं कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है अंदर की कहानियों का, लेकिन मैं क्यों कहूँ? हमारी ये इल्मी गुफ्तगू हो रही है। अब मिडल में आप कह रहे हैं डॉक्टर जाहिया को तो लोग यूं करते होंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो आपस में इल्मी गुफ्तगू हो रही है ना। तो मौलवी साहब इस तरह की बात नहीं करते, फिर मैं कुछ कहूंगा तो फिर आपको गुस्सा चढ़ेगा। इसलिए आपने एक ही सवाल किया था ऐलान बरात, और ऐलान बरात की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो रवायत नंबर 143 और रवायत नंबर 843 में आपस में तदबीक पैदा हो गई है, क्योंकि 143 में जो जिक्र है कि अंबिया को इख्तिलाम नहीं होता, वहां पे शैतानी इख्तिलाम का जिक्र है। और जो रवायत 843 है वहां पर जो नबी को बीमारी की वजह से हो भी सकता है, उसका जिक्र है। ठीक है, इसलिए दोनों में तत्बीक है। तो मैं अब दोबारा मैं तीसरी दफा, दोबारा नहीं तीसरी चौथी दफा कह रहा हूँ मौलवी साहब, ये जो आपका दूसरा मेयार था ना, अब इसके ऊपर ऐलान करें कि आप के चूंकि उलमा अपने खुद इस बात में मुत्तफिक नहीं है कि ये मेयार है नबी का, कि नबी को एहतराम हो सकता है कि नहीं, इसलिए ये मेयार आपने गलत बयान किया था। नबी को किसी मर्ज की वजह से, किसी दूसरी मजबूरी की वजह से, हाँ शैतानी एहतराम नहीं हो सकता, उसके अलावा हो सकता है बीमारी वगैरह की वजह से। ठीक है जी, आपने एक ही बात पूछी थी, मैंने बयान कर दी। हाँ, आपने अभी तक मैंने वो जो हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत का जिक्र किया था, आपने ये बताना है मौलवी साहब कि आपके मुताबिक ऐसा शख्स जो वफात से पहले तश्त मंगवाए, पेशाब करे उसमें और वहीं पर उनकी वफात हो जाए, क्या वो आपके नजदीक सच्चा नबी हो सकता है या नहीं, आपके मियारों के मुताबिक? जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, आपने अभी तक कोई जवाब तो दिया नहीं सीरतुल महदी की। मैं तो जवाब दे दिया आपका, एक सवाल पूछा था उसका जवाब दे दिया मैंने। क्या बात कर रहे हैं मौलवी साहब, की हो गया थे जान तो की हो गया थे हैं? एक सवाल किया सी तो मैं जवाब देता मौलवी साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। हजरत आयशा वाली बात का जवाब देना जरा। बोलन ते दिओ विचों तुसीं बोल पैंदे हो ते फिर इहो ही ते कादियानी मरदइयां दा तरीका हुंदा है कि विच बोल पैणगे जी। हां जी, और वीडियो बना के आपने देखे नाज़रीन, हां जी देखे नाज़रीन, मौलवी साहब जो है ना ये जवाब नहीं दे रहे जी, हां जी देखे नाज़रीन। तो ये ड्रामा आप लोगों ने अपनी चैनल के ऊपर जाकर चलाना होता है। तो अभी तो मैं आपको म्यूट ना करता आपका माइक, तो आपने इसी तरीके बोले जाना था, मुझे बात करने नहीं देनी थी। तो यहाँ तो वो अल्लाह भला करे यूट्यूब वालों का, उन्होंने ये सहूलत दी हुई है, स्ट्रीम यार्ड वालों ने। ऐसा जी, आ जाए जरा जनाब, आ जाए जरा अगली अपनी टर्म के अंदर। जब मैं आपको बोलने का मौका दूं तो आपने मुझे बताना है कि आला हजरत फाजले बरेलवी ने जो फतावा रज़विया के अंदर कहां पे लिखा है कि किसी हदीस के अंदर या किसी रिवायत के अंदर आया है कि नबी को एहतलाम हो सकता है। आप बार बार फतावा रज़विया का लोगों को कह के ना धोखा दे रहे हैं। इस सफा नंबर 157 के ऊपर किसी एक जगह भी नहीं है, हत्ता के इसका ये जो फतवा 155, 56, 157, 158, 159 पे जाके खत्म होता है। हत्ता के पूरे फतावा रज़विया के अंदर भी, पूरे फतावा रज़विया का चैलेंज किया मैंने आपको, पूरे फतावा रज़विया का किसी एक जगह भी नहीं है कि किसी हदीस में आया है कि अंबिया को इख्तिलाम हो सकता है।
हत्ता कि वो इस फतवे में तो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि ये लफ्ज शनी और मकरू है। फरमाया हुआ कौनुन मुनकरुन जिद्दुन, ये बहुत ज्यादा मुनकर कौल है कि कोई बंदा ये कहे कि नबी को इख्तिलाम हो सकता है। वो फतावा रज़विया और आला हज़रत तो ये लिख रहे हैं, आप लोगों को दजलो बयानी और वो जनाब फलां ने कहा, फलां किसने कहा है, कहां लिखा हुआ है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? मेरे सामने मेरे हाथ में मौजूद है किताब, आप कह रहे नहीं उसमें लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? वो काब अहबार रहमतुल्लाहि तआला अलैह से जो मरवी हुआ कि याजूजो मजूज नुतफा इख्तिलाम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से बने हैं, अव्वल काब ही से इसका सबूत सेहत को ना पहुंचा। वो तो इस चीज की बात, इख्तिलाम की बात नहीं हो रही, वो नुतफे की बात हो रही है। नुतफे की बात हो रही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जनाब वो बता रहे हैं कि जो आगे वो जो नस्ल चली थी वो किस तरीके से, वो कहते हैं वो जो कौल है ना किसी फलां बंदे ने जो कहा है वो कौल मोतबर नहीं है। इसके ऊपर वो ये पूरी गुफ्तगू हो रही है और आप कह रहे हैं नहीं जी नहीं, वो नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी वो फलां ने कहा है ना जी, ये हदीस में नहीं है, ये हदीस नहीं है। एक बंदे की अपनी राय है कि यार ऐसा हुआ होगा, ये हदीस नहीं है। आपको किसने कहा ये हदीस है? क्यों लोगों को आप झूठ बोल रहे हैं हदीस 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 कह के? कहां पे लिखा है कि ये हदीस के अंदर है कि किसी नबी को इख्तिलाम हो सकता है, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इख्तिलाम हुआ, या दीगर अंबिया को इख्तिलाम हुआ? मैंने आपको चैलेंज किया कोई एक हदीस ले आए कि किसी नबी को भी कभी इख्तिलाम हुआ हो। चले शैतानी नहीं रहमानी कर लें, मैंने तो यहां तक आपको छूट दी है कि रहमानी इख्तिलाम की भी छुट्टी है। आपको लेके आए कोई सही हदीस लेके आए, कोई रिवायत लेके आए। आप कह रहे हैं जी इस्लाम की 2 किस्में होती हैं, उसकी आगे फिर 3 किस्में होती हैं, फिर आगे 4 किस्में होती हैं। बात का बतंगड़ बना दो, देखी जाएगी। बंदा खलोता सी मशरक की तरफ मुंह खाल के तुझे लै गए मगरब की तरफ। ऐसे नहीं जी मुरब्बी जी, मुझे वादे तौर पे बताएं, इतनी देर हो गई हमें गुफ्तगू करते हुए, अभी तक आपने साबित नहीं किया। ज़ियारतुल आप इसके ऊपर क्या कहेंगे यार, और मुरब्बी जी का क्या करें? हेलो ज़ियारतुल जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। इन्होंने हुण पता की कर मदद ले ली है, मैं थोड़े को मशवरा कर रहा की कीता जाए। ए मुरब्बी जी तो इंज ही करते हैं। वो जान दो सर जी, इन्होंने की कहना है, ये कोई और बंदा विच आ जाए ना, लो मौलवी आप नस गया, मौलवी को दलील नहीं सी है, मौलवी दी बोलती बंद होगी, तीजा बंदा आगे कर छड़े। ये पुराने अकेडे इनके रहने बुरी है, इन्होंने इन्हीं चीजों से ही तो अपनी आवाम को गुमराह करना है, और है क्या इनके पास? मूवी मेकर साहब ने भाजी वो कर सकते ने भाजी, वीडियो बना के उन्होंने लॉन्च करनी है। देखिए नाजरीन, देखा नाजरीन, मौलवी भाग गया था, गुलाम को ले आया। फलाने मुनाज़रे में भाग, हर वीडियो होता है फलाना मौलवी भाग गया, तो वो भाग गया था। वीडियो में तो क्या कहना, हमारे मुंह पे कह रहा होता है तू भी भाग गया था, तू फलानी जगह से भी भाग गया। तो पहले इन्हों कह चुके ने, तू भी भज गया। जवाब आपे नहीं देंदे पे हजरत जी, ते नस तुसी गए हो। चलो जी इन्हां दा म्यूट हटाइए ते जरा फरमांदे ने की। डॉक्टर साहब बोलें जी आप। जी जज़ाकल्लाह। मौलवी साहब मैं कुछ नहीं कह रहा, अवाम खुद ही देख लेगी। मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा बात ये है, मैं तो इल्मी बात करने वाला बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब आपने ये बयान किया, आपने बड़ा जोर शोर से ये अपना बयान दोबारा दोहराया कि मैं आपको ये दिखाऊं कि आला हजरत ने कहाँ सारे फतावा रिजविया में ये लिखा है कि नबी जो है उसको इत्लाम हो सकता है। मौलवी साहब मैं फिर आपसे मुअद्दबाना तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, आपको मेरी दलील ही नहीं समझ आई। मैंने कब आला हजरत को बतौर दलील के पेश किया है? मैं तो इस बात को मान रहा हूँ कि आला हजरत ने भी इमाम नबी और हाफिज अस्कलानी के साथ इस बात के साथ वो अग्री नहीं किया। मेरी दलील तो इमाम नबी और हाफिज अस्कलानी के बारे में ये जो आला हजरत ने लिखा है कि हाँ
यानी मुस्बत बात कर रहे हैं, हाँ असबाब में इकरार कर रहे हैं। हाँ अवाम नबी और हाफिज इस्कलानी ने शुरू सही मुस्लिम व सही बुखारी में इसकी ये तावील नकल की। क्या नकल की? कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर फैजान ज़्यादत फजला बसबब इब्तलाए अदइया मना नहीं, और फिर क्या आगे फरमाते हैं, और इसे कायम रखा। मेरी दलील तो ये है, आप इसको पढ़ ही नहीं रहे। इसमें कहाँ इख्तिलाम हुआ? इसमें कहाँ लिखा है कि इख्तिलाम हुआ? कि ये अल्लामा नबवी ने कहा हो या हाफिज अस्कलानी ने कहा हो जी इख्तिलाम होता है? कहाँ लिखा है इसी इबारत में? वाह 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 मौलवी साहब वाह, वाह मौलवी साहब वाह, छा गए हो तुसी ते। कहाँ लिखा है जी? मैं अब उर्दू भी आपको पढ़ाऊं मौलवी साहब? हाँ अच्छा आप चले 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर लेता हूँ। मैं फिर शुरू से पढ़ता हूँ, देखे ना जब बात चली गई तो फिर शुरू से ही कर लेते हैं ना। उसमें आपकी दूसरी बात का जवाब भी आ जाएगा। आपने ये लोगों के सामने जानबूझ के बात की कि लुत्फा की बात हो रही है, इख्तिलाम की नहीं हो रही। मैं शुरू से पढ़ लेता हूँ। काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से जो मरवी हुआ, अब गौर से सुनिएगा बात किसकी चल रही है कि याजूज व माजूज लुत्फा एहतलाम, आम लुत्फा नहीं एहतलाम, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से बने हैं। तो अब बात किसकी चल रही है? जिसके आगे इमाम नबी की बात लेके आए हैं और हाफिज इस्कलानी की वो बात चल रही है लुत्फा एहतलाम की, आम लुत्फे की नहीं। ठीक है, उसके आगे फरमाते हैं एहतलाम का जो लुत्फा है उसके बारे में फरमाते हैं, अव्वल का भी से इसका सबूत सेहत गना पहुंचा। अब ये नबी ने हस्बे आदब उसका उनका इत्तबा किया, नबी ने यानी हजरत इमाम नबी ने उनका इत्तबा किया, इस बात का माने इस बात को। फिर काब साहब इसराइलियात हैं इनकी रवायत में। फिर अगली बात में यहाँ आपके आला हजरत ने इसका इनकार किया। मैं तो मानता हूँ आला हजरत इसका इनकार कर रहे हैं। हाँ उसी बात को कहाँ लिखा है कि इन्होंने लिखा है जी, इस अभी तक जो इबारत पढ़ी है कहाँ पे लिखा है कि ये नबी को एहतराम होता है? हजरत आदम आपके नबी थे आपके नजदीक, या हजरत आदम नबी नहीं थे मौलवी साहब? नबी हैं जी, नबी हैं। हजरत आदम के बारे में ये बात शुरू हुई है कि याजूज माजूज लुत्फा एहतलाम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से बने हैं। लुत्फा एहतलाम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से बने हैं, इसकी आगे वो बहस चला रहे हैं, लुत्फा एहतलाम के ऊपर बहस चला रहे हैं। ठीक है मतलब एक मिनट मतलब ये कि जो मौजूद जो है आप क्या समझे वो समझें। मैं इसे ये समझा हूँ कि फितर की एक एहतलाम होता है जो आम इंसान को, नॉर्मल इंसान को, गैर नबी को जो एहतलाम होता है, क्या ये वो वाला एहतलाम है? यहाँ पे अंबिया की बात हो रही है मौलवी साहब, यहाँ पे सैयदना, यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। मैं देखें मैं ये नुतफा एहतलाम वो है जो आम इंसानों को एहतलाम होता है रात को, ये वो है नहीं। यहाँ पे वो नुतफा एहतलाम रात है जहाँ हजरत आदम की यहाँ से बात चल रही है। हजरत आदम का यहाँ पे जिक्र है, आम इंसान कहाँ पे आ गए यहाँ पे मौलवी साहब? उर्दू में लिखा हुआ है, आम उर्दू है, पढ़ लें। आपको उर्दू समझ नहीं आती मौलवी साहब? बुरा ना मनाइएगा। ये लफ्जों के गोरख धंधे में ना लाए डॉक्टर साहब, लफ्जों के गोरख धंधे में ना लाए। तो आप ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं आ रहा। हजरत मौलवी साहब हजरत आदम का यहाँ पे जिक्र है, आप क्यों आम आदमी की बात लेके आ रहे हैं? हजरत आदम आपके नजदीक नबी नहीं है, आप मेरे से सवाल ही कैसा कर रहे हैं कि आम आदमी की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे अंबिया की बात हो रही है। ठीक है मौलवी साहब, हम गल सुनो, बहुत हो गया जी मौलवी साहब, लोगों ने जो सुना होगा उनको भी बड़ा मजा आया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज अब ऐलान कर दें कि आपका जो था ना दावा, जो मेयार नंबर 2 वो गलत था। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्जी है, आप ना करें, आपने उसके अलावा जो मर्जी कहते रहे। देखें जी चैनल आपका है, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, और ये चले कोई बात नहीं मौलवी साहब, आज इतना काफी है? रुकने जाना नहीं जाना नहीं, सुन के जाना है, जाना नहीं जनाब। अच्छा
अब ये मुरब्बी जी दजल, यही तो बात है कि मिर्जा गुलाम कादियानी का भी यही तरीका था। वो जनाब बात कोई और होती थी, ले कहीं पे और जाता था, लफ्जों के गोरख धंधे में ऐसा फंसा देता था, इसका तर्जुमा ये, इसका तर्जुमा ये। हाँ जी, वो हदीस में लफ्ज आया करआ, करा, करा का लफ्ज आया, मिर्जा कादियानी ने कहा इस करा से मुराद कदा है, कदा, कदा। अब कदा से मुराद, मिर्जा कादियानी ने कहा कि कदा से मुराद है कादियान। चलो नवी सुन लो, यानी कर्रा को किस तरीके से कदा बनाया, कदा से कादियान बना दिया, खींच थ्रू के, खिंच थ्रू के। हाँ जी, ये वही तरीका है जी। वो मिर्जा कादियानी को किसी ने पूछ लिया, जी हजरत जी आप ईसा इब्ने मरियम कैसे बन गए, इब्ने मरियम कैसे बन गए, आप तो इब्ने चिराग बीबी उर्फ घसीटी हैं। तो मिर्जा जी ने कहा कि वो असल में हुआ यूं है, इधर इधर आना तेनू मैं दसा की होया मेरे नाल। ते होया इंज के भाई ओ कादी यार मोहम्मद ने लिखा इस्लामी कुर्बानी सफा नंबर 12 के ऊपर कि मिर्जा जी मरियम बन गए और फिर खुदा आया मिर्जा कादियानी साहब के पास, उसने रजूलियत की ताकत का इजहार किया और जनाब समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। मिर्जा जी फिर लिखते हैं, मुझे फिर उसकी पदाश में 16 दिन तक मेरी मकद से खून भी आता रहा, और फिर लिखते हैं जनाब मुझे 10 महीने का हमल हो गया, और 10 महीने का जब हमल हो गया तो अंदर ईसा था, अंदर ईसा था। वो जनाब ईसा जब पैदा होता है तो इस तौर पे मैं इब्ने मरियम ठहरा। बंदा वेदा ही रहना की होया की बनया की वो की बन गया है, वो इस तो केड़ी तवील है यार। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम लोगों का ड्रामा होता है। कादियानियत को सारी दुनिया समझ चुकी है, लोगों को बात कुछ और हो रही है। मुरब्बी जी अपनी एक नप्पे तलो जी देखी जाएगी। वो नुत्फा एहतलाम एक लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। मिर्जा जी वो डूबते को तिनके का सहारा ले करके मिर्जा कादियानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इनको वो कितना बार बार बताया कि तुम एक नबी का तकाबुल जो है एक आम शख्स से करवा रहे हो, जबकि मिर्जा कादियानी ने खुद कहा कि मेरा तकाबुल किसी के साथ करवाना नहीं है। मुरब्बी जी कहते हैं ना जी मिर्जा कादियानी जी, हम आपको तो मानते हैं लेकिन आपकी एक नहीं मानते। मिर्जा जी हम आपको तो मानेंगे, आपकी एक नहीं मानेंगे। मिर्जा जी तुहाडी नहीं असी मननी, हाँ तुहानू मनने हैं असी। यही काम है आप लोगों का। यानी मिर्जा कादियानी की बात का किसी का जवाब दिया नहीं आपने। ऊपर से जो फतावा रज़विया का एक सफा 156 के ऊपर जो बात लिखी है उसकी मुराद भी कुछ और अपनी तरफ से खिंच हो के ले आओ जी, ऐ वेखो ना जी, ऐ वेखो ना जी जो मैं दसना पिया जी। ये क्या तरीका है यार, ये डॉक्टर साहब ये कोई तरीका है? ये मिर्जा कादियानी को इस तरीके से आप सच्चा साबित करते हैं, लिहाजा जी मिर्जा जी सच्चे साबित हो गया। ऊपर से आप मुझे ये कह रहे हैं ये जो तुमने नबूवत का म्यार नंबर 2 बयान किया है ना, लिहाजा ये तुम इसकी तौबा का इकरार कर लो। हम कह रहे हैं तौबा तो इकरार करेंगे हम, पहले इसको झूठा तो साबित कर लो, झूठा तो साबित कर लो। हदीस में तो वाज़ेह तौर पे यह है कि नबी को इहतलाम होता ही नहीं, वो चाहे शैतानी हो या रहमानी हो, कोई भी हो। हदीस में ये आया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और इसको मिर्जा कादियानी ने कहा है, मिर्जा कादियानी ने कहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तबरानी की खसाइसुल कुबरा की कि नबी को इहतलाम नहीं होता। और इसी फतावा रज़विया का जो हवाला आपने दिया है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि तबरानी मोजम कबीर बी तरीके अकरमा और दीगर वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी रिवायत करते हैं कि महतलमा नबीयुन कत व इन्नमल इहतलामु मिनश शैतान, कि नबी को कभी एहतलाम नहीं होता, क्योंकि एहतलाम जो होता है वो शैतान की तरफ से होता है। शैतान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब मेरे सरकार ने तो ये नहीं कहा कि नहीं असल में वो एहतलाम 2 तरह का होता है, एक रहमानी होता है तो एक शैतानी होता है। ये तो आप कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, हदीस कुछ और कह रही है, मिर्जा कादियानी कुछ और कह रहा है। तो सच्चा कौन है, झूठा कौन है? चले करें बात, जवाब दें इसका।
जवाब मुझे चाहिए मिर्जा कादियानी की इबारत का। इधर उधर का वक्त पास करके चलो जी, कितना टाइम हो गया अभी तक जवाब ही नहीं दिया। वाह 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 मौलवी साहब सुभान अल्लाह है। कितना वक्त हो गया अभी तक जवाब ही नहीं दिया है। वो अवाम सुन रहे हैं, आप फिक्र ना करें। बात आपने की मौलवी साहब के, बात कोई और होती है, कहीं और ले जाते हैं ये कादियानी। और अब आप देख लें, लोग सुन रहे हैं कि कौन कौन बात को इधर उधर लेके जा रहा है, कौन बात कर रहा है कादा की, करा की, कादियान की। मैं कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ये अल्लामा हाफिज मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, बात से दौड़े इधर उधर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इब्ने मरियम चिराग बीबी घसीटी, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये तो आप कह रहे हैं जनाब मोहतरम मुबशर शाह साहिब। फिर आप ये मैं कह रहा हूँ दोबारा उस हवाले को देखें। इंसान को मतलब है, मुझे शर्म आ रही है मौलवी साहब, बुरा मत मनाइएगा, कि वो हवाला वो क्यास किसी पर मुझे मत करो जिसका मैं जवाब दे चुका हूँ, जिसके सफ़ा नंबर 51 के जरिए आपको गलत साबित कर चुका हूँ कि आप सफ़ा नंबर 52 के बारे में जो लोगों को गुमराह करते हैं मौलवी साहिब, वो बात गलत है। सफ़ा 51 उसकी तशरीह कर रहा है, आपने फिर वही वाला दोबारा दोहरा दिया। मौलवी साहब अभी तो हमारी बात खत्म नहीं हुई, यही तो मसला है हमारे साथ। हम एक बात को वजाहत करते हैं, हम आपको जवाब देते हैं, आप फिर वहीं से शुरू कर लेते हैं और जैसे थे, है जी। फिर आपने कहा कि फतावा रिजविया में लिखा हुआ है कि जनाब इस्लामी युवा अंबिया को, मैंने कब कहा है कि आपके आला हजरत ने इस बात को माना। फिर मैं एक दफा फिर आपको कह रहा हूँ मौलवी साहब, मेरी दलील तो आपको पता नहीं, समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ आपके इमाम आला हजरत साहब ने ये वहां पे लिखा है, फरमाते हैं हाँ, यानी इस बात की तस्दीक की है। इमाम नबी व हाफिज इस्कलानी ने शुरू सही मुस्लिम व सही बुखारी में इसकी ये तावील नकल की। क्या तावील नकल की कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर फैजान ज़्यादत फजला बसबब इत्तलाए अतिया मना नहीं और इसे मुकर्रर रखा। मैं तो कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं उसे मुकर्रर रखा, तो मैं तो आपको जनाब मौलवी साहब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके आला हजरत साहब ने नहीं माना, आला हजरत मेरे लिए हुज्जत नहीं है। मैं इन जो दो आपके इमाम हैं इनका कौल आपके सामने पेश कर रहा हूँ और ये जिसारत कर रहा हूँ कि जिस बात के बारे में आपके अपने उलमा आपस में नहीं जो है वो इख्तलाफ रखते हैं, उसको आप मेयार उठा के अवाम को गुमराह करने के लिए अच्छा नहीं लगता। और वही बात मैं दोबारा लगाने लगा हूँ, आपने फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमें ये हदीस बतलाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे नबी वफात से पहले आपने तश्त मंगवाया, उसमें पेशाब किया और फिर आपका जिस्म मुबारक ढीला हो गया, यानी वहीं पे आपकी फात होगी। आप लोग मेयार बनाते हैं कि जो अगर इस तरह फौत हो ये तो नौजुबिल्लाह सच्चा नबी नहीं है। तो मौलवी साहब मेरी आखिर पे आपसे हथ बन के मैं आपसे ये आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा अपने मेयार ठीक करें, इस्लामी करें, कुरानी करें। बस यही हमारी तो दरख्वास्त ही है ना। आप ना माने आपकी मजबूरी होंगी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। मेरा ख्याल लोगों को अब मैसेज चला गया है। अब आपके पास जो आपने बातें करनी थी कर ली हैं, जो मैंने करनी थी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आवाम को डिसाइड करने दें, वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे, आवाम के पास भी तो दिमाग है ना। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब मेरी बारी है, मैं बोलूंगा, आप चुप करके सुनिएगा तवज्जो के साथ। मेरे बोलने से पहले कॉलर काफी मौजूद हैं, एक एक मिनट है भाई आप लोगों के पास, अपनी बात करें। और तीसरा सवाल इनसे ये है कि अब ये वीडियो अपनी सामने ला के बात नहीं कर रहे, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, मैं अपनी वीडियो बंद भी कर सकता हूँ। यहाँ साहब को डर रहे हैं यहाँ पे कि अगर इन्होंने वीडियो में अपनी शक्ल दिखा दी, कितने मुसलमान हैं इंग्लैंड के अंदर ही वहां जाके इनकी गेम बजा रहे हैं। असल बात ये है सारी। बहुत मेहरबानी शाह साहब जी, प्रवास साहब थे। अच्छा, एक और साहिब क्या नाम, एक मिनट जी, बोले जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, हम मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जी, कौन बोल रहे हैं जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मुबशर अहमद सेठी। जी जी, करें जी सवाल, क्या बात है, करें। तो आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलें आप। कि मैं आप
डॉक्टर याहिया साहब से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, आप मौलवी साहब से कितने सालों से मुबासरे कर रहे हैं, मुबाहले का सब कुछ किया आपने, और इनको आप 2-2 दिन 3-3 दिन तीन दिन भी लगा के समझाते रहेंगे तो इनकी समझ में कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि इनका कौवा सफेद है और वो सफेद ही रहेगा। बस मैंने यही मैसेज देना था डॉक्टर साहब को। जी चलें जी, ठीक हो गया जी। एक और साहिब को हम लेते हैं, बाबर शाह साहब। बाबर शाह साहब, आप सिर्फ ये मुनाजरा करके कहते हैं जी देखो जी हमने साबित कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए इसलिए मिर्जा साहब को नबी मान लो। भाई कैसे मान लें, आप साबित तो करें उनको, पहले उनकी शख्सियत के बारे में बताएं। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताएं वो कैसे नबी, वो नबी कैसे हैं, उनका किरदार बताएं। चलें ठीक हो गया। हुसैन भाई आपका पैगाम डॉक्टर साहब तक पहुंच गया, अगर वो चाहेंगे तो जवाब दे देंगे। डॉक्टर साहब मेरी बात अभी बाकी है, मैंने सिर्फ क्योंकि कॉलर काफी आए हुए थे, अभी भी कॉलर काफी हैं तो उनको हम लेते हैं कॉल में। तो मैं अपनी बात करूंगा कि बात जो नए दोस्त आए हैं वो भी सुन लें। बात यही है सिंपल सी कि मिर्जा कादियानी साहब कहते हैं कि नबियों को इख्तिलाम नहीं होता। हदीस में वाज़े तौर पे है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी को इख्तिलाम नहीं होता, क्योंकि इख्तिलाम शैतानी वसावस और ख्यालात की वजह से आता है। ये हदीस में है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर कहीं भी नहीं कहा कि ये इख्तिलाम की 2 किस्में होती हैं, एक शैतानी होता है, एक रहमानी होता है, एक दर्दों की वजह से होता है, थकावट की वजह से होता है, सफर की वजह से होता है। तो ये हदीस में मुतलक का है, और मुतलक का कायदा यह है कि अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक के ऊपर जारी होता है, और इसका इतलाक जो है ना ये नफियो इस्बात सबके ऊपर है, और रहमानियो शैतानी सबके ऊपर है। इख्तिलाम जब कह रही है कि नहीं होता तो फिर नबियों को इख्तिलाम नहीं होता। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुलिया कायदा है, मेरे आका ने फरमाया है, और किसी नबी को इख्तिलाम नहीं हुआ इसी कायदे के तहत कि मेरे आका ने फरमा दिया है किसी को इख्तिलाम नहीं होता। और ये 1400 साल का ये मुसलमान अकीदा मुसलमानों का चलता आ रहा है। समझ आई कि नहीं आई? और मैं ये कह रहा हूं कि मिर्जा जी खुद भी इस चीज को इकरार करते हैं। उन्होंने भी कोई 2 किस्में तो 3 किस्में तो 4 किस्में इख्तिलाम की वो बयान नहीं की। डॉक्टर साहब, मिर्जा साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि नबियों को इख्तिलाम नहीं जी होता, कोई नहीं जी हुंदा, नबियों को इख्तिलाम नहीं हुंदा, क्योंकि ए जेडे इख्तिलाम हुंदे ने शैतानी वसावस दी वजह तो हुंदे ने। उन्होंने वाज़े तौर पे कह दित्ता है, वो कम से कम मिर्जा जी दी ते मान लो यार, कम से कम मिर्जा जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ नहीं जे ਮੰਨनी ਅਸੀਂ। मैं आपको जरा बोलने का मौका देता हूं। डॉक्टर साहब मेहरबानी करें, इस बात को जरा क्लोज करें। 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ, जल्दी जल्दी गल खत्म करो। ਤੁਸੀਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी मौलवी साहब मदानी तो तुसी पा ली है, मैं तो 2-3 दफा कहा जो गल तुसी कहनी सी तुसी कह ली, जो मैं कहनी सी कह ली, लोगों को डिसाइड करन दो। तुसी फिर कहंदे हो नहीं जी बंद, अजे अजे रहो, अजे गल चलेगी। मदानी तो तुसी पाई बैठे हो मौलवी साहब। अच्छा बात यह है मौलवी साहब कि जो दोस्तों ने कुछ सवालात किए मेरे से, जज़ाकल्लाह उनका, लेकिन मेरी आपको भी पता है मेरी आपसे गुफ्तगू होती रहती है, मैं मौजू से इधर उधर नहीं हुआ करता। आज का जो मौजू है मैं उसी पे रहूंगा। हाँ अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है तो हफ्ते वाले दिन पाकिस्तानी वक्त के 8 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, उसमें आके कर लें, मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, फेसबुक पर भी होता है, यूट्यूब पर भी होता है, तो वहां पे आके कर लें, हम जवाब दे देंगे। जहां तक आपने बात की मौलवी साहब अभी कि आपने ये किया कहा, ये दोबारा वही बात रिपीट की आपने कि आप ये कह रहे हैं कि नबी को इख्तिलाफ नहीं होता। मैं भी फिर जाहिर है उसके जवाब में अपनी बात रिपीट करने पे मजबूर हूँ कि आपके जो फतावा रिजिया जो है, ठीक है, इसी में देखें आपके आला हजरत ने ये कौल नकल किया है इमाम नबी का और हाफिज अस्कलानी का, जिससे ये पता चलता है कि अंबिया को वो जो शैतानी इख्तिलाम है जिसकी बारे में मिर्जा साहब ने भी कहा कि नबियों को नहीं होता, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी यही पता चलता है कि नहीं होता, वो ज़ाहिर अंबिया को नहीं होता। हाँ अवाम नबी और हाफिज अस्कलानी के मुताबिक आप ना माने मौलवी साहब, आप ना माने, इमाम नबी और हाफिज अस्कलानी के मुताबिक हो सकता है, और उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो फैजान ज़ियादत फुज़ला की वजह से, यानी कॉन्स्टिपेशन हो, देखें मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। इख्तिलाम एक होता है शैतानी जिसमें आपको ख्वाब वगैरह आती है, फिर इख्तिलाम होता है। बाद बीमारों को, किसी को प्रोस्टेट का कोई मसला हो,
ठीक है, प्रोस्टेट का पता है ना मौलवी साहब आपको, प्रोस्टेट का कोई मसला हो, कब्ज हो, ठीक है, उस वजह से बात थकावट बहुत ज्यादा हो, बाद दफा सलाम होता है, कोई साफ वगैरह नहीं आती, यहाँ पे उसका जिक्र हो रहा है बीमारी की वजह से, यानी कि वो हो सकता है। तो आपने अपनी बात कर ली, अब मैं बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और आपकी मर्जी का आपने आगे चला दें कि आपने अपनी बात कर ली, मैंने आपकी बात जो है, जो मैंने बात करनी थी कर ली, अवाम जो है उनको डिसाइड करने दे, बात खत्म। हमको जबरदस्ती तो नहीं, ना आपने मेरी बात माननी है, ये तो तय हो गया ना, 2 घंटे हो गए ना, मेरी आपकी बात माननी है, ठीक है, अवाम को डिसाइड करने दें, बात खत्म। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गल ते सुनो ना, ए ना ए साडी वीडियो जे तकरीबन 2 घंटे ते 19 मिनट दी हो गई है, ते डॉक्टर साहब ने ना जो वीडियो अपने चैनल ते अपलोड करनी है ना, देखे नाज़रीन, अच्छा देखे नाज़रीन कर करके ऐसे बेचारी 2-2.25 घंटे दी वीडियो ना उन्होंने खिंच के लाया ना 5 घंटे ते, देखे नाज़रीन, आइए मैं आपको समझाता हूँ ना, ये देखिए बड़ा ड्रामेबाज मुरब्बी है ईद। हमने आज 3 मियारे नबूवत पेश किए, जब के कादियानी मुरब्बी डॉक्टर याह्या साहब आते हैं, इन 2 को छोड़ करके मैंने कहा ना डूबते को तिनके का सहारा, उनको पता था मैंने जाना है, अभी देखना नहीं, मैं ढा लेना इन्होंने नहीं। ए फतावा रज़विया, और इबारत कौन सी, वो इबारत कौन सी इबारत कि जिसमें यह लिखा हुआ है कि फिजाने ज़ियादत फुजला बसबब इब्तलाए अदइया मना नहीं, और इसे मुकर्रर रखा। लो जी देखो जी, मिर्जा जी सच्चे साबित हो गए, नबियां नूं इख्तिलाम हो सकता है। ये होता है ड्रामा, ये होता है ड्रामा। और पोली जी एक चीज विचों लैके ना जी, आओ ना जी मौलवी साहब, ये देखो ना जी फतावा रज़विया में लिखा है इख्तिलाम होता है, तो इबारत कौन सी सुनाई जिसमें ये लिखा ही नहीं है। तो ये होता है मुर्दइयों का ड्रामा और दजल और फरेब। तो जी प्यारे भाइयों, आपने गुफ्तगू सुनी, हमें उम्मीद है कि आप खूब महजूज हुए होंगे और आपने भी इस बात को नोट किया होगा कि ना सिर्फ ये कि मौलवी साहब के हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे सवालात के जवाबात दिए और इनका जो है वो मुंह बंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दलाइल थे उनके सामने, बल्कि हमने जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी वो हदीस बार बार मौलवी साहब के सामने पेश की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक से मुतल्लिक वो जो एक वाक़या है जो हदीस में मरवी है, इन मौलवी साहब ने, वही मौलवी साहब जो कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के ऊपर बढ़ बढ़ कर बातें किया करते हैं, अपने गैर इस्लामी मेयारों के ऊपर जो है वो छलांगे लगाया करते हैं, इनको हिम्मत नहीं हुई कि ये उस हदीस को टच भी करते। तो ये है जी इन मौलवी साहिबान का हाल इसके, और ये वो हशर नशर है जो मौलवी साहब का लाइव इनके प्रोग्राम में हुआ, महज अल्लाह ताला के फजल के साथ। इसके साथ ही प्यारे भाइयों खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।